Dear learners, welcome back. I have started a new initiative in which I'll be teaching you non-technical subjects like polity, history, geography, etc. And this is very important for the engineers. I feel that engineers face a very difficult situation when they give state level examinations where they when they have to study these non-technical subjects as well. And I don't find any channel which is relevant for engineers because they are very much in depth, like for civil services examination or the state PCS examinations. So I want this lecture to be very crisp and to the point so that you understand everything and quickly, and this will help you out for your state level examinations or RRBJE or SSC whenever you face these non-technical subjects. So without any further ado, let's start with this chapter. I'll be explaining you in Hindi as well as English. Both will be the medium of teaching. So first of all, let's start with uh, president. And this is the first chapter of polity, and I'll be teaching you about the president. Very easy. So in our constitution, part 5 of our constitution from article 52 to 78 deals with the union executive. So now the question is, who are union executive? So union executive consists of first the president, second the vice president, third is the prime minister, fourth is the council of ministers and fifth is the attorney general. तो ये जो पांच लोग हैं ये मिल करके बनाते हैं यूनियन एग्जीक्यूटिव। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 5 है और जो आर्टिकल 52 से 78 है वो यूनियन एग्जीक्यूटिव से डील करता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये दोनों ही लाइंस इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। सो आई एम मार्किंग इट इम्पॉर्टेंट फ्रॉम ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू। कभी आ जाएगा आपके यूनियन एग्जीक्यूटिव में कौन कौन है और ऑप्शंस दे देंगे 4 एंड यू हैव टू एलिमिनेट द रॉन्ग ऑप्शन और राइट ऑप्शन वॉट एवर इट इज। सो इस तरह के क्वेश्चंस कॉमन है। नाउ हमारे मैंने आपको कहा पार्ट 5 ऑफ आर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो अभी थोड़ा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को देख लेते हैं कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने पार्ट्स हैं, हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर। So sometimes you will find that there are 22 parts in our Indian constitution, and sometimes in some searches you will find that there are 25 parts in our constitution. So confusion रहती है, तो मैंने ये दृष्टि आय से लिया है। So how many exactly parts are there in our constitution? So there are 22 parts in our constitution, but if you see carefully, part 9, then there is part 9A, then there is part 9B। फिर यहाँ पर और आप देखो there is 2 parts for another one, that is part 14 and part 14A। so यहाँ पर ऐसे करके हमें 3 एक्स्ट्रा पार्ट्स मिलते हैं, 9A, 9B और 14A। तो ये जो 3 एक्स्ट्रा पार्ट्स है ये टोटल मिला करके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के टोटल 25 पार्ट्स बना देते हैं। सो you can say there are 25 parts in our constitution, you can also say that there are 22 parts in our constitution। so total number of articles हमारे constitution में कितने हैं? so there are 448 articles in our constitution, and how many schedules in our constitution are there? There are 12 schedules in our constitution। so अभी बस इतना ही, हर पार्ट किससे डील करता है वो सब बाद में। now first point was we are studying about president। थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने आपको बता दिया है यहाँ पे। अब चलिए देखते हैं हाउ इज प्रेसिडेंट इलेक्टेड। हाउ इज प्रेसिडेंट इलेक्टेड? सो क्या हम लोग डायरेक्टली, आप और हम, क्या प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए वोट डालते हैं? बिल्कुल नहीं, प्रेसिडेंट को हम नहीं चुनते। प्रेसिडेंट को फिर कौन चुनते हैं? हम जिन्हें चुनते हैं एमपीज एंड एमएलएज, वो लोग मिल करके प्रेसिडेंट का चुनाव करते हैं, ठीक है। सो हु ऑल आर इन्वॉल्व, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। elected members of both houses of the parliament, elected members of both houses of the parliament। so parliament के जो दोनों कौन कौन से हाउसेस हमारे पार्लियामेंट में? लोकसभा और राज्यसभा, राइट। ये दोनों हमारे हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट है। इनके जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो चुनते हैं हमारे प्रेसिडेंट को। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट्स and elected members of the legislative
assemblies of union territories of Delhi and Pondicherry. So ये दोनों यूनियन टेरिटरीज के जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, जिन्हें हम लोग बोलते हैं विधानसभा और विधान परिषद, तो वो जो है विधानसभा जो है, ये उनके जो मेंबर्स हैं, इलेक्टेड मेंबर्स जो हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इलेक्टेड मेंबर्स, जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो सारे मिलकर के हमारे राष्ट्रपति को चुनते हैं। इलेक्टेड वर्ड मैंने क्यों बोला कि इंपॉर्टेंट है, बिकॉज nominated members of the parliament nominated members of the parliament and legislative assemblies of the state and the union territories and the members of the legislative council मतलब विधान परिषद do not participate in the election of president। तो आप ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो प्रेसिडेंट की इलेक्शन होती है तो उनमें कौन कौन वोट देते हैं प्रेसिडेंट को। तो पहला है इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा के जो चुने गए मेंबर्स है वो, चुने गए मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज यानी कि विधानसभा के जो मेंबर्स है वो, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ यूनियन टेरिटरीज। कभी कभी आपको लगेगा कि यूनियन टेरिटरीज पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, लेकिन दिल्ली और पौंडीचेरी के जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्टेड मेंबर्स है वो, ये तीनों वोट देते हैं। अब कौन कौन वोट नहीं देते हैं? नॉमिनेटेड मेंबर्स, जिन्हें राष्ट्रपति हमारे नॉमिनेट करते हैं, वो मेंबर्स जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज और पार्लियामेंट के नॉमिनेटेड मेंबर्स और यूनियन टेरिटरीज के भी जो नॉमिनेटेड मेंबर्स है वो डू नॉट पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है। एंड द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि विधान परिषद के कोई भी मेंबर्स पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एन एमएलए? नॉट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ डिस्कशन फॉर इंजीनियर्स, बट अगर आप कोई स्टेट पीसीएस दे रहे हैं देन यू शुड नो। तो वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एक एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर है उनका वोट का क्या वैल्यू होता है? तो वो कैसे निकालते हैं? टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट, मान लो एक स्टेट की टोटल पॉपुलेशन है 5 लाख, so 5 lakh divided by total number of elected members in the state legislative assembly। तो elected members in the suppose उस state assembly में, legislative assembly में मान के चलो कोई 50 मेंबर्स हैं, मान के चलो 50 मेंबर्स हैं, तो इनको हम लोग डिवाइड कर देंगे और उसके बाद यानी कि 10,000 वैल्यू आ गई वोट की, एक वोट की वैल्यू 10,000 है, लेकिन इसको हम लोग डिवाइड करेंगे 1/1000 से, 1/1000 से। सो 10,000 इंटू 1/1000, दिस विल गिव यू 10। सो एक जो मेंबर की, एक एमएलए की वोट की जो वैल्यू है वो होगी 10। नाउ नेक्स्ट, अभी एमपी लोग के वोट की वैल्यू कितनी होती है? एमपी लोग के वोट की वैल्यू कितनी होती है? टोटल वैल्यूज ऑफ वोट्स ऑफ ऑल एमएलएज ऑफ ऑल स्टेट्स। सो एक एमएलए की इतनी वैल्यू है, तो टोटल जितने भी एमएलए होंगे, एक्स नंबर ऑफ एमएलएज हैं, तो एक्स नंबर ऑफ एमएलएज को मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल स्टेट्स के, फिर टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट में जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स हैं, सपोज वाई, उसको डिवाइड कर देंगे, वो एक एमएलए एमपी की वोट की वैल्यू होती है। That is for your PCS examinations, not very important for engineers, but still I'm teaching you. All doubts and disputes in connection with the election of the president are inquired by the Supreme Court। अगर कोई भी डाउट या डिस्प्यूट है प्रेसिडेंट की इलेक्शन में, तो हम लोग उसको क्या करते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में जाता है और सुप्रीम कोर्ट ही उसकी सुनवाई करती है। कोई हाई कोर्ट या फिर कोई भी सबऑर्डिनेट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए सुनवाई नहीं कर सकती है। If the election of the president is declared void by the Supreme Court, the acts done by him before the date of such declaration are not invalidated and continue to remain in force। अगर सपोज एक प्रेसिडेंट का चुनाव होता है, प्रेसिडेंट चुने जाते हैं, लेकिन कुछ पता चलता है कि उनके चुनाव में कुछ गड़बड़ी थी और सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया कि ये प्रेसिडेंट अब नहीं रहेंगे और फ्रेश इलेक्शंस हो गए, लेकिन इस बीच प्रेसिडेंट्स ने बहुत सारे पेपर्स पे साइन कर दिया है, क्या किया है, बहुत सारे लॉज बनाए हैं। ठीक है, तो क्या ये सारे लॉज खारिज कर दिए जाएंगे, इनवैलिडेट हो जाएंगे?
नहीं, ये सारे लॉज, कोई भी लॉ इनवैलिड नहीं होगा और सारे वैसे के वैसे ही काम रहेंगे, वैसे ही काम करते रहेंगे, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे जो प्रेसिडेंट है, हमारे जो प्रेसिडेंट है, ही इज द नॉमिनल हेड, नाम मात्र के हेड हैं, लेकिन जो रियल हेड हम लोग के होते हैं वो होते हैं पीएम। सारे डिसीजंस पीएम लेते हैं, लेकिन सारे लॉज पीएम बनाते हैं, लेकिन सिग्नेचर जो रहता है वो प्रेसिडेंट का रहता है। तो ही इज द नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट एंड पीएम इज द रियल हेड। तो सारे लॉज प्रेसिडेंट ने नहीं बनाए, दो उनके साइन से अप्रूव हुआ है। तो अगर प्रेसिडेंट हमारे इलेक्ट नहीं भी हो पाते हैं, लेकिन उनके द्वारा जो भी पेपर्स पे साइन हुए हैं वो उतने ही मान्य रहेंगे, ठीक है। Election for the post of the president cannot be postponed on the ground that some of the legislative assemblies have been dissolved and elections to take place. So अभी क्या है कि हर हमारे देश में हर स्टेट्स में चुनाव तो चलते ही रहते हैं, कभी इधर यूपी में है, कभी बिहार में है, कभी किधर है, कभी कुछ है। तो जब प्रेसिडेंट का चुनाव आ रहा है तो पता चला कि कुछ कोई लेजिस्लेटिव असेंबली अभी है नहीं, वो भंग हो गई, वहां पर चुनाव होना है, तो क्या प्रेसिडेंट का इलेक्शन रुक जाएगा? नहीं, प्रेसिडेंट का इलेक्शन नहीं रुकेगा। वही लिखा हुआ है, द इलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट कैन नॉट बी पोस्टपोन्ड। पोस्टपोन नहीं किया जा सकता है कि कुछ लेजिस्लेटिव असेंबली अपने कार्य में नहीं है, अपने कार्यकाल में नहीं है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, जानते हैं व्हाट आर द क्वालिफिकेशंस ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन जरूरी है? फर्स्ट, ही शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। अगर सिटीजन इंडिया का नहीं है तो नहीं बनेगा प्रेसिडेंट, जाहिर सी बात है। ही शुड बी एटलीस्ट 35 ईयर्स ऑफ एज। ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है क्वेश्चंस में कि प्रेसिडेंट बनने की मिनिमम एज क्राइटेरिया क्या है, 35 ईयर्स। ही शुड बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ लोकसभा। लोकसभा के मेंबर होने के लिए एलिजिबल होने चाहिए। ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। कोई भी और दूसरा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वो उनके पास नहीं होना चाहिए। द नॉमिनेशन फॉर द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट by at least 50 electors as proposers and 50 electors as seconders must be submitted. तो प्रेसिडेंट के लिए जो इलेक्शन होता है उसमें 50 इलेक्टर्स ऐसे होने चाहिए जो उनका नाम प्रपोज करेंगे और 50 ऐसे होने चाहिए जो उनको वोट देंगे, सहमति बनाएंगे, और ये नॉमिनेट करने का प्रक्रिया है। तो ये हो गए क्वालिफिकेशंस ऑफ द प्रेसिडेंट, इक्वली इंपॉर्टेंट। उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है 35 ईयर्स ऑफ एज। नेक्स्ट इज ओथ। ओथ मतलब शपथ। तो प्रेसिडेंट को कौन शपथ दिलाता है? द ओथ ऑफ द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट इज एडमिनिस्टर्ड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो प्रेसिडेंट को शपथ दिलाते हैं, लेकिन अगर वो प्रेजेंट नहीं है, अभी कोई चीफ जस्टिस नहीं है मान के चलो, तो फिर कौन? तो कोई सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, कोई भी सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, वो क्या करता है, प्रेसिडेंट के को शपथ दिलाता है। और प्रेसिडेंट हमारे यानी कि राष्ट्रपति हमारे किस चीज के लिए शपथ लेते हैं? टू फेथफुली एग्जीक्यूट हिज ऑफिस, to preserve and protect and defend the constitution and the law, to devote himself in the service and the well-being of the people of India। यही 3 शपथ है। लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात है कि उनको कौन दिलाता है शपथ? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सीजेआई, ठीक है। और अगर वो नहीं है तो सबसे सीनियर मोस्ट जज जो रहेंगे सुप्रीम कोर्ट के, वो उनको शपथ दिलाएंगे, राष्ट्रपति को। टर्म ऑफ ऑफिस, इसका मतलब है कार्यकाल। कार्यकाल मतलब राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने समय का होता है, कितने समय तक वो काम कर सकते हैं। द प्रेसिडेंट होल्ड्स द ऑफिस फॉर 5 ईयर्स। 5 साल का कार्यकाल होता है फ्रॉम द डेट अपॉन ही एंटर्स द ऑफिस, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है डेफिनेटली। कितने साल का कार्यकाल होता है? 5 साल का। ही कैन होल्ड द ऑफिस बियॉन्ड हिज टर्म्स अंटिल हिज सक्सेसर अज्यूम्स द ऑफिस। कि जब तक उनका दूसरा राष्ट्रपति चुनाता नहीं है तब तक हमारे राष्ट्रपति अपने 5 साल के बाद भी काम कर सकते हैं, राष्ट्रपति बने रहेंगे। ही इज एलिजिबल फॉर री इलेक्शन एनी नंबर ऑफ टाइम्स। कितने बार भी री इलेक्शन मतलब बार बार उम्मीदवार के तौर पर खड़े हो सकते हैं। ही कैन रिजाइन फ्रॉम द ऑफिस at any time by addressing his resignation letter to the vice president। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
अगर राष्ट्रपति को अपना रेजिग्नेशन देना है, राष्ट्रपति हमारे सबसे ऊंचे पायदान पे होते हैं, हम उनका प्रायोरिटी सीनियोरिटी लिस्ट सबसे ऊपर होता है, फर्स्ट इज द प्रेसिडेंट। लेकिन अगर प्रेसिडेंट को इस्तीफा देना है, अगर उन्हें रेजिग्नेशन देना है, तो वो किन्हें रेजिग्नेशन देंगे? वाइस प्रेसिडेंट को रेजिग्नेशन देते हैं, ठीक है। लेकिन उन्हें शपथ कौन ग्रहण कराते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और अगर उन्हें अपने पद से हटाना है तो कैसे हटाते हैं? बाय द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट। इसको हिंदी में बोलते हैं महाअभियोग। महाअभियोग। तो उन्हें इम्पीचमेंट या महाअभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया जाता है उनके पद से। अब जहां पर इम्पीचमेंट की बात आई है, समझ लेते हैं कि इम्पीचमेंट कैसे होता है। अगर राष्ट्रपति ने कभी कुछ गड़बड़ किया और सही काम नहीं किया, या उन्होंने मतलब उनका एक ही चीज में महाभियोग होता है, इम्पीचमेंट होता है, जब वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन के विरुद्ध काम कर रहे हैं, हमारे संविधान के विरुद्ध अगर उन्होंने काम किया तो उनका इम्पीचमेंट या महाभियोग किया जा सकता है, मतलब उन्हें अपने पद से हटाया जा सकता है। अभी देखते हैं कि ये जो महाभियोग या इम्पीचमेंट की प्रोसेस है वो क्या होती है। इम्पीचमेंट मतलब राष्ट्रपति को उनके पद से हटाना। The impeachment process is a constitutional mechanism to remove the president for violation of the Constitution of India. उनको एक ही बार उनको हटाया जा सकता है, और वो क्यों हटाया जा सकता है? वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कौन से आर्टिकल के तहत आता है इम्पीचमेंट का प्रोसेस? अंडर आर्टिकल 61। द प्रोसेस कैन बी इनिशिएटेड बाय ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा। तो ये जो इम्पीचमेंट है, ये कहाँ पर शुरू किया जा सकता है? या तो लोकसभा में या तो राज्यसभा में। ये स्टेट लेवल में या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में स्टार्ट नहीं किया जा सकता है कि हाँ हमें राष्ट्रपति को हटाना है। राष्ट्रपति को हटाने का जो प्रक्रिया है, या तो वो लोकसभा में स्टार्ट करेगा या तो वो राज्यसभा स्टार्ट करेगा। नाउ nominated members of both houses of the parliament can participate in the impeachment of the president, though they cannot participate in his election. हमने अभी अभी पढ़ा, जब भी प्रेसिडेंट की इलेक्शन होती है तो जो नॉमिनेटेड मेंबर्स थे पार्लियामेंट के, लेजिस्लेटिव असेंबली के और यूनियन टेरिटरीज के, वो उनके इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, वो वोट नहीं दे सकते हैं। लेकिन जब प्रेसिडेंट को हटाने की बात होती है तो उनका वोट जायज है। Nominated members of both houses of the parliament can participate in the impeachment of the president, though they cannot participate in his election. This is very important point. Now, next point. The elected members of legislative assemblies of the state and union territories do not participate in the impeachment process of the president, though they participate in the election of the president. जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं वो प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट प्रोसेस में वोट नहीं देती है, लेकिन वो जो है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जरूर पार्टिसिपेट करती है, ठीक है। अभी देखना है कि प्रोसेस क्या है, स्टेप्स क्या है इम्पीचमेंट के। तो पहले तो a notice of impeachment must be signed by at least 1/4 of the total members of originating house and submitted to the presiding officer. तो जो भी, अगर लोकसभा स्टार्ट कर रहा है, सॉरी जोकसभा में लिख दे रही हूँ, अगर लोकसभा जो है प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट की प्रोसेस स्टार्ट कर रहा है, तो लोकसभा में टोटल हमारे कुल कितने मेंबर्स हैं? टोटल होते हैं 552 मेंबर्स। तो 552 मेंबर्स टोटल सीट्स हैं अभी हमारे लोकसभा में। तो 552 मेंबर्स में जो 1/4 मेंबर होने चाहिए, 1/4 मेंबर ऑफ 552 वो एटलीस्ट साइन करने चाहिए इम्पीचमेंट की नोटिस को, और उन्हें देंगे वो अपने प्रिसाइडिंग ऑफिसर को। तो लोकसभा के केस में, अगर लोकसभा के केस में अगर स्टार्ट हो रही है तो उनकी प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होते हैं? वो होते हैं स्पीकर ऑफ लोकसभा। दूसरी बात यह है कि अगर राज्यसभा में ये स्टार्ट हो रहा है, ये प्रोसेस राज्यसभा में स्टार्ट हो रही है, तो राज्यसभा के कुल कितने मेंबर्स होते हैं? 250 मेंबर्स होते हैं राज्यसभा में। तो 250 मेंबर्स में 1/4 ऑफ 250 इस नोटिस को साइन करने चाहिए। इतने लोगों की सहमति होनी चाहिए, और वो अपने इस रिपोर्ट को देंगे कि हम अपने प्रेसिडेंट को हटाना चाहते हैं। ये रिपोर्ट वो देंगे अपने प्रिसाइडिंग ऑफिसर को। प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होते हैं? चेयरमैन ऑफ राज्यसभा।
और वो कौन होते हैं? वो होते हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वही होते हैं राज्यसभा के चेयरमैन। ठीक है, तो पहला तो या तो लोकसभा या तो राज्यसभा स्टार्ट करेगा। कैसे स्टार्ट करेगा ये प्रोसेस को? कम से कम 1/4 ऑफ द मेंबर्स ऑफ दैट हाउस शुड साइन द नोटिस ऑफ इम्पीचमेंट। चलो, अब ये साइन हो गया पेपर कि हाँ अब प्रेसिडेंट को हटाना है और उन्हें दिया गया, तो 14 दिन का नोटिस दिया जाता है प्रेसिडेंट को कि हाँ आपको हटाया जा रहा है भाई, आप देख लो। तो 14 दिन का नोटिस पीरियड उन्हें दिया जाता है। कंपनीज किसी एम्प्लॉय को हटाना चाहती है तो इमीडिएट भी हटा देती है, लेकिन यहाँ पर 14 दिन का नोटिस दिया जाता है बिफोर मूविंग अ रेजोल्यूशन। द मोशन इज डिबेटेड एंड वोटेड on the originating house and must be passed by 2/3 majority of the total membership। अभी नोटिस दे दिया गया है। अभी ये जो मोशन है कि प्रेसिडेंट को हटाना है, उसका डिबेट होता है। कहाँ पर होता है? जो ओरिजिनेटिंग हाउस है, मतलब जो लोकसभा में या तो डिबेट होगा या तो राज्यसभा में डिबेट होगा। तो अगर लोकसभा हटाने का प्रस्ताव पास करती है तो लोकसभा में डिबेट होगा। अगर राज्यसभा चाहती है कि वो हटाए तो राज्यसभा में डिबेट होगा। और वो जो डिबेट होगा वो 2/3 लोग साइन करना चाहिए। 2/3 ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप। टोटल मेंबरशिप के 2/3 मेंबर्स उसको सहमति होनी चाहिए। फिर क्या होता है कि ये प्रस्ताव दूसरे हाउस में पास किया जाता है। अगर लोकसभा में शुरू हुआ है तो राज्यसभा को पास करेंगे, अगर राज्यसभा में पास शुरू हुआ है तो लोकसभा को पास करेंगे। द मोशन इज देन सेंट टू द अदर हाउस फॉर इन्वेस्टिगेशन। द प्रेसिडेंट हैज द राइट टू अपीयर टू बी प्रेजेंट ड्यूरिंग द इंक्वायरी। If the second house also passes the impeachment resolution by 2/3 of majority, फिर जो दूसरा हाउस है वो भी 2/3 मेजोरिटी के साथ इस रेजोल्यूशन को पास करना चाहिए। द प्रेसिडेंट स्टैंड्स रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस फ्रॉम द डेट ऑफ द रेजोल्यूशन। तो अगर 2/3 मेंबर्स दूसरे हाउस में भी इस रेजोल्यूशन को पास कर देते हैं तो हमारे प्रेसिडेंट अपने ऑफिस से रिजाइन हो जाते हैं, चले जाते हैं। लेकिन impeachment can be initiated only on the grounds of violation of the constitution, though the constitution does not explicitly define violation। मतलब हमारे प्रेसिडेंट को सिर्फ और सिर्फ उन अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स को वायलेट करते हैं तभी उन्हें हटाया जा सकता है उनके पद से। लेकिन ये वायोलेशन क्या है वो कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला नहीं है। आई होप आप लोग को समझ में आ रही होगी बातें। तो आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। वेकेंसी इन द प्रेसिडेंट्स ऑफिस। प्रेसिडेंट के ऑफिस किन किन समय में खाली रह सकते हैं? तो 5 कंडीशंस है जब जब प्रेसिडेंट के ऑफिस में वैकेंसी आती है। पहला कि उनकी टर्म 5 साल की टर्म खत्म हो गई है, अब नए प्रेसिडेंट आएंगे तब वेकेंट हो सकती है। दूसरे है कि उन्होंने रिजाइन कर दिया अपने जॉब से, रेजिग्नेशन दे दी भैया। तो रेजिग्नेशन किसे देते हैं? वाइस प्रेसिडेंट को रेजिग्नेशन देते हैं। तो प्रेसिडेंट रिजाइंस टू द वाइस प्रेसिडेंट, या तो उन्हें हटा दिया गया हो उनके पद से, इम्पीचमेंट के द्वारा उन्हें अपने पद से हटा दिया गया है, या फिर उनकी मृत्यु हो गई है। चौथा कंडीशन ये हो सकता है, या सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयरिंग द इलेक्शन नल एंड वॉइड। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन को ही बोला कि ये गलत इलेक्शन हुआ था और आपको अपने पद से इस्तीफा देना होगा या आपको अपने पद से हटाया जाता है। तो ये 5 कंडीशंस हैं जब हमारे प्रेसिडेंट का पद खाली हो सकता है। अच्छा, तो जब प्रेसिडेंट का पद खाली होगा तो उनके जगह पे कौन बैठेगा उनके पद पर? वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है। When the vacancy is caused by the expiration of the term of the sitting president and the election of the new president is delayed due to any reason, then the outgoing president continues to hold the office beyond his term of 5 years and the vice president does not get an opportunity to act as a president। इसका मतलब है कि पहला कंडीशन, जब उनका 5 साल कंप्लीट हो गया है और दूसरे राष्ट्रपति चुनने में समय लग रहा है, कुछ भी कारण से डिले हो गया है, तो क्या हमारे राष्ट्रपति या वाइस प्रेसिडेंट क्या उनका पद संभाल सकते हैं? नहीं, पहले केस में तो नहीं। अगर इलेक्शन दूसरे प्रेसिडेंट को चुनने में देरी हो रही है तब इस केस में वाइस प्रेसिडेंट कभी भी प्रेसिडेंट नहीं बनते हैं। तब कब कब वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट बन सकते हैं? इस केस में क्या होता है कि जो प्रेसिडेंट है वही अपना ऑफिस संभालते हैं 5 साल के बाद भी। लेकिन बाकी 4 केस में है
या तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया हो, या तो उनका महाभियोग या इम्पीचमेंट हो गया हो, डेथ हो गई हो, या फिर सुप्रीम कोर्ट ने उस इलेक्शन को नल एंड वॉइड कर दिया हो, उस केस में, इन 4 केस में जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है वो प्रेसिडेंट की जगह ले सकते हैं और प्रेसिडेंट के तौर पे काम कर सकते हैं। दूसरी बात, इफ द ऑफिस फॉल्स वेकेंट बाय रेजिग्नेशन, रिमूवल, डेथ और अदरवाइज, द इलेक्शन टू फिल द वैकेंसी मस्ट बी कंडक्टेड विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ द अकरेंस ऑफ द वैकेंसी। तो जिस समय हमारे प्रेसिडेंट की जो वैकेंसी है, ऑफिस वेकेंट रहेगी, तो उसके विद इन 6 months, विद इन 6 months, विद इन 6 months दूसरे राष्ट्रपति चुनने की प्रक्रिया शुरू करनी होगी। द न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट रिमेन्स इन द ऑफिस फॉर द फुल टर्म ऑफ 5 years। अगर इस चारों केस में जब वाइस प्रेसिडेंट एक्ट कर रहे हैं, और तो वाइस प्रेसिडेंट मैक्सिमम कितने समय तक प्रधान राष्ट्रपति रह सकते हैं? मैक्सिमम 6 महीने। क्यों मैक्सिमम 6 महीने? इन 6 महीने में जो नए राष्ट्रपति चुनने का प्रक्रिया है वो शुरू करना ही करना है, ठीक है। और जो नए राष्ट्रपति चुने जाएंगे, समझो कि एक राष्ट्रपति है जिनके 3 साल काम करने के बाद, राष्ट्रपति रहने के बाद, उन वो उनका डेथ हो गया, उनका कार्यकाल अभी भी 2 साल 2 साल का बचा हुआ है। तो क्या नए राष्ट्रपति जो चुने जाएंगे वो सिर्फ 2 साल के लिए बनेंगे कि कितने समय के लिए बनेंगे? तो जो नए राष्ट्रपति है, जो न्यू प्रेसिडेंट है, he will be acting for next 5 years, he will be for next 5 years and not just 2 years। सो जो नए राष्ट्रपति होते हैं वो पूरे समय के लिए राष्ट्रपति चुने जाएंगे, पूरे 5 साल के कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति चुने जाएंगे, यही मैंने लिखा है यहाँ। मीनवाइल द वाइस प्रेसिडेंट एक्ट्स एज प्रेसिडेंट। तो इन समय में जब नए राष्ट्रपति चुने जाते हैं, तब तक में जो वाइस प्रेसिडेंट है वो प्रेसिडेंट के तौर पे काम करते हैं। इफ द वाइस प्रेसिडेंट्स ऑफिस इज वेकेंट, लेकिन लेकिन कभी वाइस प्रेसिडेंट ही नहीं है, तो फिर कौन बैठेगा उनकी जगह में? द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी नहीं है तो सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट discharges the duty until the new president is elected। सो हमने अभी अभी पढ़ा कि 5 केसेस में प्रेसिडेंट की ऑफिस खाली रह सकती है, या तो उनका कार्यकाल 5 साल समाप्त हो गया है, सेकंड उनका रेजिग्नेशन उन्होंने दे दिया है वाइस प्रेसिडेंट को, या फिर रिमूव कर दिया गया है उन्हें इम्पीचमेंट के द्वारा, उनकी डेथ हो गई हो, या फिर सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन को ही रद्द कर दिया है। तो इन 5 केसेस में प्रेसिडेंट की ऑफिस खाली रह सकती है। तो क्या अगर एक राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त हो गया है तो क्या वाइस प्रेसिडेंट कभी भी प्रेसिडेंट बन सकते हैं? नहीं। उस केस में जो पहले से प्रेसिडेंट हैं वो अपना 5 साल के बाद भी काम करेंगे और वही प्रेसिडेंट रहेंगे। लेकिन बाकी 4 सिनेरियोज में, या तो रेजिग्नेशन, इम्पीचमेंट, डेथ या इलेक्शन नल वॉइड कर दिया गया है, इन 4 केसेस में जो उपराष्ट्रपति हैं, जो कि हमारे वाइस प्रेसिडेंट है, वो प्रेसिडेंट के तौर पे काम कर सकते हैं। लेकिन अगर वाइस प्रेसिडेंट ही हमारे नहीं है, तब फिर कौन? तब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हमारे प्रेसिडेंट के तौर पे काम कर सकते हैं। लेकिन अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी नहीं है उस वक्त, तब फिर कौन? तब फिर सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट डिस्चार्ज द ड्यूटीज ऑफ द न्यू प्रेसिडेंट। कब तक? जब तक नए प्रेसिडेंट की इलेक्शन नहीं हो जाती। नए प्रेसिडेंट की इलेक्शन कब तक में होनी है? विद इन 6 months, विद इन 6 months। ये 6 महीने की टाइमलाइन है, उसके बीच में आपको नए राष्ट्रपति चुन ही लेने हैं। अभी टॉपिक पे चलते हैं, और मेरे ख्याल से ये आखिरी टॉपिक है, पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट के कितने पावर्स हैं? कुल मिलाकर के प्रेसिडेंट के हमारे 10 पावर्स होते हैं, 10 पावर्स एंड फंक्शंस हैं, ठीक है। पहला है एग्जीक्यूटिव पावर, फर्स्ट इज एग्जीक्यूटिव पावर, नेक्स्ट इज लेजिस्लेटिव पावर, थर्ड इज फाइनेंशियल पावर, फोर्थ इज जुडिशियल पावर। ऐसे करके 10 पावर्स हैं जो हम एक एक करके डिस्कस करते हैं, ठीक है। फर्स्ट इज एग्जीक्यूटिव पावर्स। All the executive actions of the government of India are formally taken in the name of the president। मतलब कि
जितना भी हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कितना भी काम होता है, कोई भी लॉ बनता है, कोई भी एक्ट बनता है, कुछ भी होता है, तो उस पे प्रेसिडेंट का साइन चाहिए, वो उन्हीं के नाम पर होता है। ठीक है। द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर एंड द अदर मिनिस्टर्स हु होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्रेसिडेंट्स प्लेजर। मतलब कि जो प्रेसिडेंट है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं, वो अदर मिनिस्टर्स को अपॉइंट करते हैं, और ये सारे लोग होल्ड्स द ऑफिस, मतलब अपने काम करते हैं जब तक प्रेसिडेंट की इच्छा होती है। प्रेसिडेंट की इच्छा, प्रेसिडेंट चाहे तो इन्हें अपने पद से हटा भी सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर को भी हटा सकते हैं, मिनिस्टर्स को भी हटा सकते हैं, लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है, मैं बताऊंगी क्यों। द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस बियरर्स लाइक गवर्नर्स ऑफ द स्टेट। जितने भी गवर्नर हैं स्टेट के, उन्हें अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट। अटॉर्नी जनरल एंड द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स। इलेक्शन कमीशन के भी जो ऑफिसर्स है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। चेयरमैन एंड द मेंबर्स ऑफ द यूपीएससी, चेयरमैन एंड द मेंबर्स ऑफ द फाइनेंस कमीशन, ये सारे लोग को हमारे राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं। The president can appoint the commissions to investigate the conditions of scheduled castes, scheduled tribes and other backward classes. तो हमारे जो प्रेसिडेंट हैं वो कोई भी कमीशन अपॉइंट कर सकते हैं, कोई भी एक कमिटी अपॉइंट कर सकते हैं। क्यों? इन्वेस्टिगेट करने के लिए, किसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए? कंडीशंस ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, जो हमारे देश के शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स है और ओबीसीज हैं, उनकी क्या कंडीशन है, इनको इन्वेस्टिगेट करने के लिए हमारे राष्ट्रपति कोई भी कमीशन या कमेटी अपॉइंट कर सकते हैं। द प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट द इंटर स्टेट काउंसिल टू प्रमोट सेंटर एंड स्टेट और इंटर स्टेट कोऑपरेशन। दीज पॉइंट्स आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, but if you want you can study these. It's interesting. Okay. The president directly administers union territories थ्रू अपॉइंटेड एडमिनिस्ट्रेटर्स। सो जो जितने भी यूनियन टेरिटरीज है वो किसके अंडर में है? प्रेसिडेंट के अंडर में है। द प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर एनी एरिया एज शेड्यूल्ड एरियाज। कोई भी इंडिया का एरिया को वो शेड्यूल्ड एरिया डिक्लेयर कर सकते हैं एंड हैज़ द पावर रिलेटेड टू देयर एडमिनिस्ट्रेशन। और उस शेड्यूल एरिया की जो एडमिनिस्ट्रेशन की पावर है वो प्रेसिडेंट के पास होती है। द प्रेसिडेंट फ्रेम्स द रूल फॉर द कंडक्ट एंड एलोकेशन ऑफ मिनिस्ट्रियल बिजनेसेस। जो हमारे लोकसभा की जो अपनी रूल्स है उसको भी फ्रेम करते हैं प्रेसिडेंट। एंड एलोकेशन ऑफ मिनिस्ट्रियल बिजनेसेस, कौन मिनिस्ट्री किसको मिलेगी, कैसे होगी, वो भी प्रेसिडेंट उन्हीं से अप्रूव होता है। नेक्स्ट इज लेजिस्लेटिव पावर्स। तो पहला है प्रेसिडेंट समन्स, प्रोरोग्स एंड डिसॉल्व्स द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के में क्या, पार्लियामेंट की जो सभा है उसको बुलाते हैं, स्थगित करते हैं और डिसॉल्व करते हैं पार्लियामेंट को, लोकसभा को डिसॉल्व करते हैं प्रेसिडेंट। द प्रेसिडेंट कैन समन अ जॉइंट सेशंस ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। कभी कोई डिबेट होती है, कभी कोई फसाद हुआ, जब जॉइंट सेशन क्या होता है, जब दोनों लोकसभा और राज्यसभा मिल करके आपस में एक साथ मिल करके बैठ करके मीटिंग करते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं जॉइंट सेशन। तो जॉइंट सेशन को प्रेसिडेंट बुला सकते हैं। ठीक है। The president addresses the parliament at the commencement of the first session after the each general election and the first session of each year. तो जब पार्लियामेंट की सभा होती है आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन, 5 साल बाद जब जनरल इलेक्शन होती है और फर्स्ट जनरल इलेक्शन होने के बाद जब पहली मीटिंग होती है, उसको कौन एड्रेस करता है? उसको हमारे प्रेसिडेंट एड्रेस करते हैं। और हर बार फर्स्ट सेशन जब होती है मीटिंग, लोकसभा मीटिंग, उसको भी हमारे प्रेसिडेंट एड्रेस करते हैं। प्रेसिडेंट नॉमिनेट्स 12 मेंबर्स टू राज्यसभा। राज्यसभा में 12 मेंबर्स को प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं फॉर देयर एक्सपर्टीज इन आर्ट, साइंस, लिटरेचर एंड सोशल सर्विस। अगर कोई व्यक्ति की बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज़ है किसी आर्ट, साइंस, लिटरेचर या सोशल सर्विस में, तो ऐसे 12 मेंबर्स को राज्यसभा मेंबर्स बनाते हैं हमारे प्रेसिडेंट, उन्हें चुनते हैं। तो आप सोचे होंगे कि कभी सचिन तेंदुलकर, कभी सुधा मूर्ति जैसे लोग, कभी
जावेद अख्तर जैसे लोग राज्यसभा मेंबर कैसे बन जाते हैं, तो बिना इलेक्शन लड़े तो प्रेसिडेंट उन्हें नॉमिनेट करते हैं। ऐसे 12 मेंबर्स जो जिनके एक्सपर्टीज हो आर्ट, साइंस या फिर लिटरेचर या सोशल सर्विस में, उन्हें हमारे प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं राज्यसभा मेंबर्स में। द प्रेसिडेंट कैन नॉमिनेट 2 मेंबर्स फ्रॉम द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी टू द लोकसभा। 2 मेंबर की सीट रिजर्व होती है लोकसभा में जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। एंग्लो इंडियन मतलब आधे इंडियन आधे इंग्लिश रहे होंगे, तो वैसे वाले लोग की 2 सीट रिजर्व्ड है लोकसभा में, उन लोगों को प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं। द प्रेसिडेंट डिसाइड्स ऑन अ क्वेश्चन रिगार्डिंग द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द पार्लियामेंट मेंबर्स इन कंसल्टेशन विद द इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन से कंसल्ट करके कोई मेंबर को डिस्क्वालीफाई करना है कि नहीं, वो प्रेसिडेंट कर सकते हैं। सर्टेन बिल्स रिक्वायर प्रेसिडेंट्स प्रायर कंसल्टेशन और एसेंट इंक्लूडिंग द मनी बिल्स एंड दोज ऑल्टरिंग द स्टेट बाउंड्रीज। कोई ऐसी बिल मतलब प्रस्ताव जो कि लोकसभा में जानी है, उसके लिए पहले से प्रेसिडेंट की अनुमति लेनी होती है। जैसे कि कभी हम लोग कोई ऑल्टरिंग स्टेट बाउंड्रीज, कोई स्टेट की बाउंड्री को हमें घसकाना वसकाना है, जैसे कि बिहार और झारखंड अलग हुआ है, तो बिहार से टूट के एक नया राज्य बना झारखंड, तो हमें एक नया राज्य बनाना है, उसका प्रस्ताव लोकसभा में जाना है, तो उससे पहले प्रेसिडेंट की अनुमति लेनी होती है। After a bill is passed by both houses of the parliament and president can assent, withdraw his assent or return the bill except the money bill for his reconsideration. कोई भी बिल लॉ या एक्ट नहीं बनता है जब तक उसमें प्रेसिडेंट साइन नहीं करते हैं। तो जब भी कोई भी लॉ या कोई भी एक्ट नया बनना होता है, उसके पहले वो एक बिल कहलाता है। एक एक्ट बनने से पहले खुद बिल कहलाता है। वो बिल को पास करते हैं, उसकी प्रक्रिया हम लोग पढ़ेंगे, उसका पूरा प्रोसेस हम लोग कुछ आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। तो पहले बिल पास होता है दोनों हाउस से, फिर जाता है प्रेसिडेंट की तरफ। प्रेसिडेंट उसको अगर अनुमति दे देते हैं तो वो बन जाता है एक्ट या लॉ, उसे कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिया जाता है। अगर प्रेसिडेंट ने अपनी अनुमति नहीं दी तो वो बिल ही रह जाता है, एक्ट कभी नहीं बन पाता और वो फिर खत्म हो जाता है, फिर वो रूल नहीं बन पाता। द प्रेसिडेंट कैन प्रोमलगेट ऑर्डिनेंसेस व्हेन द पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन। लेकिन अगर कोई पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, संसद के 3 सत्र होते हैं, मॉनसून सेशन, विंटर सेशन, ऐसे करके 3 सत्र होते हैं। अगर उस सत्र में अगर कोई सभा नहीं है, तब उस केस में प्रेसिडेंट के पास वो पावर है कि वो ऑर्डिनेंस पास कर सकते हैं। ऑर्डिनेंस मतलब कोई टेम्पररी लॉ बना सकते हैं, टेम्पररी लॉ, ठीक है। सच ऑर्डिनेंसेस मस्ट बी अप्रूव्ड विद इन 6 वीक्स ऑफ द पार्लियामेंट्स रीअसेंबली और दे सीज टू ऑपरेट। तो प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस या टेम्पररी लॉ तो बना सकते हैं, लेकिन उस लॉ को फुल बनाने के लिए जब सभा सत्र में आएगी, यानी कि सेशन में आएगी पार्लियामेंट, तब वो विद इन 6 वीक्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ये इंपॉर्टेंट है, 6 महीने के अंदर अंदर उस बिल को पास कर, उस ऑर्डिनेंस को पास करके उसे लॉ बनाना पड़ेगा, नहीं तो फिर वो खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं फाइनेंशियल पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के पास फाइनेंशियल क्या क्या पावर्स हैं। मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड विद द प्रेसिडेंट्स प्रायर रिकमेंडेशन। पहले से प्रेसिडेंट से अनुमति लेनी होगी कि हम मनी बिल पास करने वाले हैं, तभी वो बिल को संसद में पास किया जा सकता है। नो डिमांड फॉर ग्रांट्स कैन बी मेड एक्सेप्ट फॉर द प्रेसिडेंट्स रिकमेंडेशन। कोई भी ग्रांट का रिकमेंडेशन नहीं दिया जा सकता है, मतलब कोई भी पैसा नहीं निकाला जा सकता है बिना प्रेसिडेंट की अनुमति के। प्रेसिडेंट कैन मेक एडवांसेस आउट ऑफ कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया फॉर अनफोर्सीन एक्सपेंडिचर्स। तो एक कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया नाम की एक फंड होती है, जिसमें कितने पैसे होते हैं, 30,000 करोड़। कंटीजेंसी फंड में 30,000 करोड़ रुपीस होते हैं। ये हमेशा से रहते हैं कंटीजेंसी फंड में, और उसको कब निकालते हैं हम लोग, अनफोर्सीन एक्सपेंडिचर्स, आपातकालीन स्थिति में इंडिया से निकालते हैं, लेकिन इसके लिए राष्ट्रपति की अनुमति चाहिए। ये हमेशा इंडिया बैलेंस करके रखती है 30,000 करोड़ रुपीस इन द कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, ठीक है। President constitutes a finance commission for every 5 years to recommend the revenue distribution between center and state.
तो प्रेसिडेंट क्या करते हैं, एक फाइनेंस कमीशन की स्थापना करते हैं every 5 years to recommend revenue distribution between सेंटर और स्टेट को कितना रेवेन्यू मिलना चाहिए, उसके लिए फाइनेंस कमीशन की स्थापना प्रेसिडेंट करते हैं। अब देखते हैं जुडिशियल पावर्स क्या क्या है, कि न्याय व्यवस्था में उनकी पावर क्या क्या है। द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट्स। तो जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, जो हाई कोर्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, उनको कौन अपॉइंट करता है, उन्हें प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। The president may seek advice from the Supreme Court on any question of law or fact. However, the advice rendered by the Supreme Court is not binding to the president. तो president चाहे तो कभी भी कोई भी एडवाइस ले सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से, किसी भी मामले में कोई भी एडवाइस ले सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन जो एडवाइस दिया सुप्रीम कोर्ट ने वो उनको मानना बाध्य नहीं है, मतलब जरूरी नहीं है। The president has the power to grant pardons, reprieve, respite, remission of punishment. तो जब सुप्रीम कोर्ट ने किसी को पनिशमेंट दे दिया है, समझो किसी को मृत्यु दंड दे दिया है या किसी को फांसी होने वाली है, तो वो फाइनली कहा जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट के बाद भी वो प्रेसिडेंट के पास गुहार लगाने जा सकता है कि हम मेरी सजा माफ कर दो मालिक। तो प्रेसिडेंट के पास उनके पास सजा माफ करने के भी पावर है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद भी उनके पास सजा माफ करने की पावर प्रेसिडेंट के पास है। उनके पास कुछ मिलिट्री पावर्स हैं। क्या क्या मिलिट्री पावर्स है? द प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्सेस इन इंडिया। तो हमारे डिफेंस फोर्सेस, एयरफोर्स, नेवी और आर्मी, एयरफोर्स, नेवी एंड आर्मी के जो सुप्रीम कमांडर है वो कौन है? वो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द चीफ्स ऑफ आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। जो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के जो चीफ है उनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। The president can declare war and conclude peace subjected to the parliament's approval. तो कोई किसी, अभी मान लो 2025 में, इस साल पाकिस्तान से वॉर हो रही थी, तो अभी वॉर हो रहा है और अभी पीस है, ये कौन डिक्लेयर करता है? ये प्रेसिडेंट डिक्लेयर करते हैं, लेकिन सब्जेक्टेड टू पार्लियामेंट्स अप्रूवल। पार्लियामेंट अप्रूवल देता है तभी वो कर सकते हैं। डिप्लोमेटिक पावर्स उनके पास है। द प्रेसिडेंट नेगोशिएट्स, कंक्लूड्स इंटरनेशनल ट्रीटी। जितनी भी इंटरनेशनल ट्रीटीज साइन होती है एंड अग्रीमेंट साइन होते हैं, वो सारा प्रेसिडेंट के नाम पे ही साइन होते हैं। जैसे हम लोगों ने यूनाइटेड स्टेट्स से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है, या किसी से भी हमने कुछ आसियान देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है, तो वो जितने भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स है या इस तरह की जो भी कुछ भी हो रही है, वो कौन किसके थ्रू होती है? वो प्रेसिडेंट के थ्रू होती है, प्रेसिडेंट के अप्रूवल से ही होती है। ठीक है। प्रेसिडेंट रिप्रेजेंट्स इंडिया इन इंटरनेशनल फोरम्स एंड ओवरसीज डिप्लोमेटिक अपॉइंटमेंट्स। तो प्रेसिडेंट हम लोग के इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ इज द सातवां है इमरजेंसी पावर्स। उनके पास कोई आपातकालीन पावर्स भी है। आपातकालीन इमरजेंसी पावर्स। द प्रेसिडेंट हैज स्पेशल इमरजेंसी पावर्स अंडर आर्टिकल 352, 356 एंड 365 एंड 360। ये आर्टिकल्स के तहत उनके पास नेशनल इमरजेंसी पावर्स है, प्रेसिडेंट्स रूल लगाने का पावर है और फाइनेंशियल इमरजेंसी पावर्स है। हम लोग ये सब नेक्स्ट कभी पढ़ेंगे जब हम लोग इमरजेंसीज पढ़ेंगे, इमरजेंसी सिचुएशन क्या होती है, लेकिन उनके पास इमरजेंसी पावर्स होते हैं प्रेसिडेंट के पास। वीटो पावर्स। वीटो पावर्स क्या होते हैं कि कभी कोई बिल, लोकसभा, सपोज कोई एक बिल है जो कि पास होनी है, उनका लॉ बनना है, तो पहले वो लोकसभा से पास होती है या राज्यसभा से पास होती है, जहां से भी पास हो, राज्यसभा से पास होगी, फिर वो प्रेसिडेंट के पास जाएगी। ठीक है। इसके बारे में हम लोग बहुत डिटेल से नेक्स्ट कुछ चैप्टर्स के बाद पढ़ेंगे। तो लोकसभा से एक बिल पास हुई, राज्यसभा में गई। ठीक है। राज्यसभा से वो बिल पास हुई, प्रेसिडेंट के पास गई। प्रेसिडेंट अगर इस बिल को पास करेंगे तब वो बनेगी एक्ट, अगर उसे पास नहीं करेंगे तो वो नहीं बनेगी एक्ट। ठीक है। तो एब्सोल्यूट पावर क्या है? एब्सोल्यूट वीटो पावर क्या है? प्रेसिडेंट कैन विड्रॉ हिज एसेंट टू द बिल एंड एंडिंग इट। प्रेसिडेंट ने इस बिल को पास ही नहीं किया, उन्हें साइन ही नहीं किया, तो ये जो बिल है वो एक्ट नहीं बन पाएगी और कभी भी इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगी। सस्पेंसिव वीटो। द प्रेसिडेंट में रिटर्न द बिल फॉर रिकंसिडरेशन इफ द बिल इज पास्ड अगेन, द प्रेसिडेंट मस्ट गिव हिज असेंट। प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं
कि बोलेंगे, अगर मान लो वो बिल लोकसभा से पास हुई है, तो प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, उस लोकसभा को बिल वापस कर सकते हैं। भाई तुम जाओ, इस बिल को वापस लोकसभा को वापस दे देंगे, बोलेंगे कि फिर से इसको रिकंसिडर करो। फिर लोकसभा ने इस बिल को फिर से सेकेंड टाइम पास करेगा, फिर राज्यसभा से फिर से पास होगा। लेकिन अगर दोबारा से ऐसा काम हो गया तो प्रेसिडेंट उसको भी इस बिल को पास करना होगा और एक्ट बनाना पड़ेगा, उसे वो फिर से रिटर्न नहीं कर सकते हैं। तो इसे बोलते हैं सस्पेंसिव वीटो, कि मतलब अगर कोई बिल प्रेसिडेंट के पास आई तो उसको वापस से वो लोकसभा में या मतलब हाउसेस में पास कर सकते हैं, बोलेंगे कि फिर से विचार करो इस बिल के बारे में। तो इसे बोलते हैं सस्पेंसिव वीटो। एब्सोल्यूट वीटो मतलब उसको साइन ही नहीं करेंगे और उसको बिल को पास ही नहीं करेंगे। थर्ड इज द पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो मतलब ना उसको खारिज किए, ना ही उसको खारिज किए, ना ही उसको वापस लौटाएं, उसको कुछ भी नहीं किए और उसको अपने पॉकेट में दबा के रख लिए और वो बिल वैसा का वैसा ही रह जाएगा और कभी भी एक्ट नहीं बन पाएगा। तो तीन तरह की उनके पास वीटो पावर्स है। एब्सोल्यूट वीटो कि उनको वो खारिज कर देंगे कि हाँ ये बिल को हम पास नहीं करेंगे और वो कभी भी एक्ट नहीं बनेगा। सस्पेंसिव वीटो कि उसको वापस से पार्लियामेंट में भेज देंगे और बोलेंगे कि इस पर विचार करो। और तीसरा है पॉकेट वीटो, उसमें से दोनों में से कोई भी काम नहीं करेंगे, उसे अपने पॉकेट में दबा के रख लेंगे और ये बिल कभी भी पास नहीं हो पाएगी। Now, ninth is the ordinance making powers of the president. President can promulgate ordinances when the parliament is not in session. मैंने अभी अभी पहले भी पढ़ाया है कि उनके पास लेजिस्लेटिव पावर्स में मैंने पढ़ाया था कि उनके पास क्या क्या पावर्स है। तो जब हमारी सभा संसद में नहीं, हमारी संसद सत्र में नहीं है, तब वो ऑर्डिनेंसेस यानी कि टेम्पररी लॉज पास कर सकते हैं प्रेसिडेंट। लेकिन ordinances must be laid before the parliament and ceases if not approved within 6 weeks after reassembly. So this is an important point. जब भी सत्र में हमारी संसद आएगी तो 6 हफ्ते के अंदर अंदर उस ऑर्डिनेंस को पास करना होगा, अदरवाइज वो खत्म हो जाएगी। ऑर्डिनेंस पावर्स कैनॉट अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन ऑर्डिनेंस जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का बदलाव नहीं कर सकता है और टेक अवे द फंडामेंटल राइट्स, हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उन्हें भी नहीं ले सकता है। एवरी ऑर्डिनेंस मस्ट बी लेड बिफोर बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट when it reassembles. If the ordinance is approved by both houses, it becomes an act. If the parliament takes no action at all, the ordinance ceases to operate on the expiry of 6 weeks from the assembly of the parliament. तो अगर जब सभा सत्र में आई तब उसको ऑर्डिनेंस को 6 हफ्ते के अंदर अंदर पास करना होगा, तब वो एक्ट बनेगी। और अगर वो ऑर्डिनेंस को पास नहीं करती है तो वो खत्म हो जाएगी। द ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर इज नॉट डिस्क्रिशनरी, मतलब अपने मन मर्जी से वो ऑर्डिनेंस नहीं पास कर सकते हैं कि अभी अच्छा संसद सभा में सत्र में नहीं है, चलो हम ये रूल चेंज कर देते हैं, ऐसा वो अपने मन मर्जी से नहीं कर सकते हैं। President can promulgate or withdraw ordinances only on the advice of the Council of Ministers headed by the Prime Minister. अगर उन्हें कोई Council of Ministers या प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं कि आप ये ऑर्डिनेंस पास करिए, तभी हमारे राष्ट्रपति ऑर्डिनेंस पास कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। The last power is the pardoning powers of the president. The president can grant pardon, commute sentences, remit fines, respite sentences or reprieve, stay execution of sentences, especially the death sentence under Article 72. मैंने आपको पहले भी कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद भी उनके पास पार्डनिंग पावर्स होते हैं, माफ करने की पावर्स हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने इतना इतना कुछ कुछ लिखा है, कम्यूट सेंटेंसेस, रेमिट, रिस्पाइट, रिप्राइव, तो ये सब क्या है, दिस इज योर होमवर्क कि उनके पास वो क्या क्या कैसे कैसे सजा माफ कर सकते हैं, उन ये सब क्या क्या चीजें हैं। आप थोड़ा गूगल करो, सर्च करो, दैट इज योर होमवर्क इफ यू आर इंटरेस्टेड। और ये आर्टिकल 72 के तहत वो सजा माफ करने की उनके पास पावर है। विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर, होप यू लाइक दिस एंड if yes, do comment that you need such lectures for other subjects as well, and I'll try my best to make such lectures. Bye bye and have a nice day.